So today I am going to attempt three hard questions of graph, three hard questions of lead code. First question I have picked from DP section, and the second one I have picked from greedy section, and the third one I have picked from graph section. And I have never attempted this question before, so this question is completely new for me. And also these all question I never have attempt these question which I have taken before. So these all questions are new to me, and I will tell while solving that how can we approach the question and finally reach the solution. So we will talk everything about the question, and slowly we will build the solution. So definitely you are going to learn how to think the problem. So I think it will be very useful. That's why I am making the video like this. It will take a lot of effort, so please support if you learn something. So let's start to the let's start the first greedy question of the uh, second question, which is of greedy section I have picked. I have never attempted this question, so let's read the problem statement. So you are given a two positive integer arrays nums and target of the same length. So we have given two integer arrays nums and target of the same length. So basically in the question we have given two arrays nums and target of same length. So the number of element in both the arrays will be same. In one operation you can choose any two distinct indices of I and j, where I and j is between 0 to nums dot length, and set nums I is equal to nums I plus 2 and nums j is equal to nums j minus 2. Okay, so in one operation you can choose two indices of nums array, and you can either increase the value of nums array by 2 or decrease the value of nums array by 2. So two arrays are considered to be similar if the frequency of each element is the same. Two arrays will be considered to be similar. So after some number of operation, two arrays are considered to be similar if the frequency of each element is the same. If two arrays having the frequency of all the elements is same, then two arrays are, you can say that those arrays are similar. So return the minimum number of operation required to make nums similar to target. So the question is asking you that find the minimum number of operation you will need to convert the nums array into the target array. So basically you want to convert nums array into target array, and you want to invest as minimum as possible operation. You want to invest as minimum number of operation as possible and want to convert nums array into target array. So our goal is to convert the nums array into target array in minimum number of operation. So, and what operation we can do? We can either increase the value by 2 or decrease the value by 2. So that's what it is given. So let's say, so what we should think of? The first thing we can think of is that the first observation in this question is that if you are adding a number 2 in a number, so you have given a number and you are going to add some plus 2 in that number, then if the number is odd, then after adding 2 it will remain odd, and if the number is even, anyhow you will decrease the multiple of 2 or increase it by multiple of 2, the it will remain even. सो अगर आप इवन में कोई भी दो का मल्टीपल जोड़ते हैं तो इवन ही रहेगा, और ऑड में कोई भी दो का मल्टीपल जोड़ते हैं तो ऑड ही रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो यही चीज सबसे बड़ा चीज है इस सवाल में, जो ऑब्जर्वेशन बहुत काम करने वाला है यहाँ पे. ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं बात करूं, व्हाइट बोर्ड में खोल लेता हूँ. मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ और इस व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. इस व्हाइट बोर्ड में अगर हम देखें, बात करें कि आपके पास जो है नम्स एरे है. ठीक है, वी हैव गिवन अ नम्स एरे एंड वी हैव आल्सो गिवन अनदर एरे व्हिच इज टारगेट. सो वी हैव गिवन दीज टू एरेज. सो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको कि आप सोचिए कि नम्स एरे को एकदम सिमिलर बनाना चाहते हैं टारगेट एरे के. ठीक है, नम्स एरे को एकदम सिमिलर बनाना चाहते हैं टारगेट एरे को. ठीक है, एक चीज आपको पता है कि नम्स एरे में कुछ नंबर ऑड होगा, कुछ नंबर इवन होगा.
और टारगेट एरे में भी कुछ नंबर ऑड होगा, कुछ नंबर इवन होगा। अब देखिए ऑड में आप 2 जोड़े या 2 घटाए, वो ऑड ही रहना है उसको, वो कुछ और नहीं बन सकता। तो आपको अगर इसमें जितना ऑड एलिमेंट है, आपको सेम ऑड नंबर ऑड एलिमेंट इसमें भी बनाना है। तो समझ रहे हैं ना आप कि ऑड से ही आप ऑड बना सकते हैं। तो पहले तो आप ऑड को सेपरेट कर लीजिए और इवन को सेपरेट कर लीजिए। सेम काम कीजिए इस टारगेट एरे के लिए, ऑड को सेपरेट कर लीजिए, इवन को सेपरेट कर लीजिए। अब क्या है ना कि आपके पास एक ऑड है, नम्स का ऑड है, ऑड ऑफ नम्स है आपके पास, और आपके पास एक और है, इवन ऑफ नम्स है। ठीक है, तो यू हैव गिवन 2 एरेज, वन इज ऑड ऑफ नम्स एंड अनदर इज इवन ऑफ नम्स। और आपको इसी तरह से एक और चीज होगा आपके पास, टारगेट का ऑड, ऑड ऑफ टारगेट और इवन ऑफ टारगेट। अब क्या है ना कि ऑड ऑफ नम्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑड ऑफ टारगेट में। आप क्या कर सकते हैं, इसके किसी भी एलिमेंट में 2 का मल्टीपल जोड़ सकते हैं या 2 का मल्टीपल घटा सकते हैं, यही आप कर सकते हैं। दिस इज द थिंग यू कैन डू है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑड नम्स में किसी भी एलिमेंट को 2 का मल्टीपल जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और ऐसे कर करके आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में आपको एकदम एग्जैक्ट बनाना है इसको ऑड की तरह। मतलब ऑड की तरह कहने का मतलब है सिमिलर बनाना है इसको ऑड की तरह। सिमिलर का मतलब होता है क्या होता है सिमिलर का मतलब? सिमिलर का मतलब वेरी सिंपल होता है, वेरी सिंपल। सिमिलर मीन्स सिंपल क्या होता है? सिंपल ये होता है कि इसमें जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी जितना बार होगा उतना ही बार इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया है अपने लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने लोग को। अब बात करते हैं कि दिक्कत क्या है अपने को, दिक्कत क्या है। ठीक है, इसी तरह से अपने को एक ऑपरेशन में आप इसके किसी भी एलिमेंट में 2 जोड़ सकते हैं या 2 घटा सकते हैं। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में इस एरे को सिमिलर करना है इसके, और इस एरे को सिमिलर करना है इसके। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें अगर x लग रहा है और इसमें y लग रहा है, तो x प्लस वाई क्या होगा आंसर। इसी x प्लस वाई को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसी आप x प्लस वाई को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको मिनिमम कैसे करें। अच्छा एक चीज बताइए, एक बहुत बढ़िया केस ये है कि मान लीजिए आपके पास जो एरे है ना, जो गिवन ऑड एरे है टारगेट का, ये एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों एरे के ऑर्डर से कोई मतलब है क्या? एलिमेंट किस ऑर्डर में पड़ा हुआ है, नहीं मतलब है। तो जब ऑर्डर से नहीं मतलब है तो दोनों ऑड एरे को सॉर्ट कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इवन एरे को भी सॉर्ट कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब उसके ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है तो चारों एरे को सॉर्ट कर लीजिए आप, सिंपल। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, आप देखिए ऑड वाला को आपको, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है एलिमेंट, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट रखा हुआ है। अच्छा क्या क्या केस हो सकता है बताइए। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है। तीन ही केस है। ये एलिमेंट या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा। अगर छोटा होगा, छोटा है, तो इसके आगे कोई भी एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके आगे कोई भी एलिमेंट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इससे बड़ा ही होगा भाई। these all elements are going to be greater than the elements present at this index IND. It's clear and cut. तो सीधा सा बात है कि यहाँ आगे जो भी एलिमेंट होगा इससे बड़ा होगा, और यहाँ भी आगे जो भी एलिमेंट होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या है ना, ये एलिमेंट बराबर नहीं है, ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है। तो ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि या तो ये बड़ा है तो कोई बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलिएगा कि क्यों इसको चेंज करना, इसको चेंज ही नहीं करना, ये इसके बराबर आ गया ना, ये एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है ना, एक 3 इसमें भी एक 3 इसमें भी, तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और नहीं अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, या तो ये छोटा हो सकता है, इसको अगर एक्स कहूँ इसको वाई कहूँ, तो केसेस कैन बी एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई। अगर एक्स लेस देन वाई है, अब बात यह है कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, इसके बराबर वाई के बराबर लाना चाहते हैं, मतलब ये एक्स कन्वर्ट होकर किसी एलिमेंट को मैच करना चाहता है, किसी एलिमेंट को मैच करेगा, किसी के बराबर बनेगा इस एरे में। वो किसके बराबर बनेगा? सीधा सा बात है कि आगे तो बड़ा है, आगे जो भी है वाई से बड़ा है। ठीक है, और ये एक्स जो है ना, क्या है, केसेस क्या है देखिए, एक्स ग्रेटर देन वाई है, अकेला अकेला देखते हैं, केस 1 देखते हैं, एक्स इज लेस देन वाई, केस इज दैट एक्स इज लेस देन वाई। अब क्या है ना, आगे जाइएगा ना आपको बड़ा मिलेगा, बड़ा मिल सकता है आपको कोई एलिमेंट। ठीक है, बड़ा मिलेगा,
एटलीस्ट 2 बड़ा तो मिलेगा ही, x प्लस 2 से बड़ा ही होगा, और नहीं तो x होगा। दो ही तो केस है, या तो आगे आपको x ही मिले, या x प्लस 2 या x प्लस 2 से बड़ा मिले, दो ही केस है। और यहाँ पर y है, यहाँ पर y प्लस 2 या y से बड़ा मिले, यही मिले। अब क्या है ना, x छोटा है y से, x छोटा है y से, x इज लेस देन y, तो क्या करिएगा, या तो आप x को बढ़ा करके y के बराबर कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो y ही बड़ा है x से, तो आगे वाला सारा एलिमेंट x से बड़ा ही होगा, ये किसी को मैच ही नहीं कर पाएगा, ये किसी को मैच ही नहीं कर पाएगा। तो उत्तम बात क्या है, इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं y में भाई, इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ये किसी को मैच ही नहीं कर पाएगा आगे यार, अगर इसको छोड़ते हैं आप तो, ठीक है। और इसको अगर आप बढ़ा के कुछ ज्यादा कर देंगे तो क्या ही ये तो माजरा और फंस गया। लेकिन आगे हमको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर y मिल जाए, y मिल जाए तो ये इसको मैच कर लेगा, ये इसको मैच कर लेगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत ये है कि कांस्टेंट का देख लिया अगर हम, फिक्स हो लोकेशन, यहाँ पर 10 की पावर 5 है। तो थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस यही है कि हम यहाँ पर आके रुके हुए हैं, ये चीज़ सॉर्टेड में पड़ा हुआ है, सॉर्टेड में पड़ा हुआ है, दोनों में ऑड नंबर, ऑड है पड़ा हुआ, ऑड एलिमेंट्स पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है जो कि ऑड है, दोनों में ऑड है। अब क्या है कि इसमें कुछ जोड़ के इसको इसके बराबर करना चाहते हैं, पहले तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, लेंथ बराबर दोनों का, क्या कर सकते हैं। देखिए बात यही है, सिंपल सा समस्या ये है, हम मान लीजिए इसको हम इसके बराबर कर लें, फिर इसको इसके बराबर कर लें, इसको इसके बराबर कर लें, मतलब मैं सिंपल सबसे क्या सोच रहा हूँ, सबसे सिंपल यही सोच रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, देखते हैं इसको इसके बराबर कर लेते हैं, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, दोनों सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, और कितना ऑपरेशन लग रहा है कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या समस्या है या नहीं है, यही बात हम करना चाह रहे हैं, समस्या क्या है इसमें, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज़ और करते हैं इसमें से, मान लीजिए इसमें, इसमें भी 3 ठो 3 है, इसमें भी 3 ठो 3 है, तीनों 3 को इसमें से हटा दीजिए, इसमें से भी हटा दीजिए, ठीक है। बाकी जो 3 बचा वो डाल दीजिए, इसमें अगर कुछ 3 बच जा रहा है तो वो डाल दीजिए, इसमें कुछ बच जा रहा है तो उसमें डाल दीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना, कि इस दोनों में 3 का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, एलिमेंट 3 का, इस दोनों में से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मान लीजिए एक्स है, इसमें से 3 में से एक्स घटाइए, जितना फ्रीक्वेंसी बचा उतना डाल दीजिए इसमें, ठीक है, इसमें भी डाल दीजिए, तो इसमें भी उतना बच जाएगा, इसमें या तो इसमें 3 बचेगा या इसमें 3 बचेगा, सही बात है। ऐसे कर करके आपके पास सब चीज़ पड़ा है, ठीक है। तो आपने ऐसा सेट निकाला, आप इस सेट से, इस दोनों S1 S2 से एक ऐसा S1 S2 बना सकते हैं, दूसरा S1 डैश S2 डैश, इसमें इसमें कोई एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट कलेक्टिवली जो है ना, इसका कोई भी, ये इसमें अगर x है ना, x कहीं और नहीं होगा, इसमें तो होगा ही नहीं कहीं और x, इसमें अगर y है तो इसमें कहीं y नहीं होगा, ऐसा स्थिति है। अगर इस तरह से S1 डैश S2 डैश आप बना लेते हैं, अगर मैं इस S1 डैश और S2 डैश को मैं शॉर्ट कर दूं, ठीक है, अब सोचिए सबसे छोटा वाला एलिमेंट यहाँ पे है, और ऐसा एलिमेंट आगे कहीं पर है भी नहीं, सबसे छोटा वाला है। तो अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, आपके पास चॉइसेस क्या है, किसी इस एलिमेंट को इसके बराबर करें या इस एलिमेंट को इसके बराबर करें, किसमें आपको कॉस्ट कम लगेगा, जाहिर सी बात है इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, बताइए आप। अब देखिए बात यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि अब इस दोनों में जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इस दोनों में, अगर कोई बोले कि इस दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो तो कोई एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। अब अगर ऐसा सिचुएशन है, अब हम इस सिचुएशन से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं क्या, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दें, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दें, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दें, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दें, हमारा काम हो जाए। क्या इस तरह का काम करें तो हमारा मिनिमम आएगा या नहीं आएगा, यही मैं सोच रहा हूँ, तो ये सोचने वाली बात है, ये बढ़ते क्रम में, ये भी बढ़ते क्रम में, सोचिए ये अगर बहुत बड़ा होगा, तो ये बहुत बड़ा होगा, इसके आगे वाला तो और बड़ा होगा, तो अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें तो आपको कम कॉस्ट लगेगा,
अगर इसको आप कन्वर्ट करिएगा इसमें तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा ऑपरेशन लगेगा, तो इसी को इसमें कर लेते हैं, इसी में मिनिमम आएगा। मिनिमम तो ऐसे ही आएगा। सोचिए ना, ये भी शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। मान लीजिए इस दोनों का कंसेक्यूटिव डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लीजिएगा, कुछ एक्स आएगा, वाई आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड समथिंग, इसका समेशन यही ना होगा, यही समेशन। इसी समेशन को आप क्या करना चाहते हैं, इसी समेशन को आप करना चाहते हैं मिनिमाइज। तो अगर आप इसके इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसी ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऑपरेशन मिनिमाइज कर पाए, नहीं तो शायद नहीं कर पाए। तो वही बात, तो सीधा सा बात है, मैं यही बात कर रहा था। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो पहला है ना 3 5 7 9 11, और यहाँ पर जो है ना आपके पास इस दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मान लेते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इससे बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा, यही ना होगा। मान लीजिए इसमें 13 15 है, 13 15 13 15 17 19 20। आप देखिए क्या है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि 3 को 13 में कन्वर्ट करते हैं, 5 को 15 में, 7 को 17 में, 9 को 19, 11 को 21 में। इसको कन्वर्ट करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 9 4 3 10, 5 ऑपरेशन लगेगा। इसको कन्वर्ट करने में 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, 5 5 5। लेकिन अगर ये 23 होता तो 7 लगता, ये अगर 21 होता तो 7 लगता, 21 होता तो इसमें से 9 गया 12, 6 लगता। इस ऑर्डर को फॉलो करना ठीक रहेगा या कोई और ऑर्डर फॉलो करना ठीक रहेगा। अगर बात करें इस ऑपरेशन के समेशन को मिनिमाइज करना है, सीधा सा बात है कि इसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। यही ग्रीडी थॉट है यहाँ पर। यहाँ पर ग्रीडी थॉट जो है, बस इतना सा ग्रीडी थॉट है, आपको इसी से इसको डिफरेंस कीजिएगा तो आपको मिनिमम मिलेगा। कुछ नहीं है, इस दोनों का निकालिए और फिर उसका जो है क्या कीजिए, कर दीजिए खेल आप, तो वी कैन डू इट। तो यही बात रहा, सिंपल सा बात। हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल थिंग वी कैन डू। क्या करते हैं, हम करते हैं, ठीक है, हम ऑड स्टोर करना चाहते हैं नम्स का और इवन स्टोर करना चाहते हैं अलग। हम बनाते हैं मैप ऑफ int कॉमा int ऑड ऑफ नम्स, नम्स का ऑड, और इसी तरह से टारगेट का भी ऑड बनाना पड़ेगा। टारगेट ऑफ ऑड ऑफ टारगेट, ऑड टी, ऑड नम्स, ऑड एन, ऑड टारगेट, इसी तरह से इवन एन कॉमा इवन टी। ठीक है, ये कर देते हैं हम। हमने 4 मैप बना लिया। अब क्या करते हैं, नम से रिपीटेड करते हैं, फॉर ईटा इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट साइज, और फिर करते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, और हम करते हैं क्या, ऑड ऑफ एन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑड ऑफ एन नम्स के। यहाँ पर अब क्या है ना कि एलिमेंट जो है हमारा इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। इफ नम्स ऑफ आई मोडुलो 2 बराबर बराबर 0, अगर ये इवन है तो कुछ करेंगे, अगर ये ऑड है तो कुछ करेंगे। वी हैव दीज टू केसेस कि मॉडुलो जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये इवन है, इवन है और नम्स का इवन है, तो हम करते हैं इवन ऑफ एन लिखते हैं और नम्स ऑफ आई लिखते हैं, ये एलिमेंट का वैल्यू क्या है नम्स ऑफ आई, और इसके फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड ऑफ एन और यहाँ पे नम्स ऑफ आई के फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देंगे। ये 2 केसेस हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे लिखते हैं इफ नम्स ऑफ आई टारगेट ऑफ आई
मॉडुलो 2 बराबर बराबर 0, या तो 0 हो सकता है मॉडुलो, या तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे इवन ऑफ टी, इवन ऑफ टी नम्स नहीं, टारगेट ऑफ आई, टारगेट ऑफ आई क्या है? टारगेट ऑफ आई प्लस प्लस। इसी तरह से क्या करेंगे? ऑड ऑफ टी, रिमाइंडर 0 नहीं है तो ऑड है, ऑड ऑफ टी। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या करेंगे? अब आपको पता है ना कि अगर दोनों के ऑर्डर में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो फ्रीक्वेंसी को आपको घटा करके मैनेज कर देना। ठीक है, हम क्या करते हैं? 4 int IT, ठीक है, IT लिखते हैं, 4 int IT, ऑटो IT लिखते हैं, ऑटो IT ऑफ ऑड ऑफ n, ऑड ऑफ n पे इटरेट कर लेते हैं। तो क्या है ना, int val इक्वल टू क्या है? IT डॉट सेकेंड, मतलब इस जगह पे एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? वैल्यू प्रेजेंट है, तो क्या होगा? IT डॉट फर्स्ट होगा। ठीक है, और इसी तरह से इस इंडेक्स पे वैल्यू तो हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? FRE, वो क्या होगा? IT डॉट सेकेंड। अब देखिए, अगर ये वैल्यू प्रेजेंट है, ऑड ऑफ n पे आप चला रहे हैं, तो अगर ऑड ऑफ टी में ये प्रेजेंट है तो ऑड ऑफ टी डॉट काउंट वैल अगर है तभी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी को मैनेज कैसे करेंगे बताइए? फ्रीक्वेंसी बराबर लिखिए मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा ऑड टी ऑफ वैल, ऐसा लिखिए। अब हो गया, फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गया। फ्रीक्वेंसी अपडेट करते हैं क्या करेंगे हम बताइए? फ्रीक्वेंसी आज अपडेटेड, इतना फ्रीक्वेंसी जो है ना दोनों में प्रेजेंट है, इतना फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को घटा देते दोनों में से, क्योंकि इतना एलिमेंट तो मतलब 5 को 3 जो है मान लीजिए ऑड ऑफ में n में है, और 4 को 3 जो है आपका क्या कहते हैं कि ऑड टी में है, तो 4 जो है यूज हो जाएगा ना, दोनों का 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैनेज हो जाएगा। तो करते रहे सीधा सा उसको मैनेज ऐसे करेंगे, देख लीजिए कि ऐसे लिखते हैं ऑड n ऑफ वैल माइनस इक्वल टू FRE, और ऐसे लिखेंगे ऑड टी ऑफ वैल माइनस इक्वल टू FRE। ठीक है, सेम काम करेंगे यहाँ पर भी। अब फिर एक काम करते हैं, क्या करते हैं? ये काम तो ठीक है, हो गया। एक बार और लूप चलाते हैं, किस पे? इवन ऑफ n पे चलाते हैं, ऑटो IT इवन ऑफ n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इंट वैल इक्वल टू लिखेंगे IT डॉट फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना है, सेम चीज कॉपी होगा, सेम लाइन, केवल ऑड को इवन से कन्वर्ट, ऑड को इवन में चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए ऑड है ना, इवन में कन्वर्ट कीजिए, VEN इवन, इसको भी इवन में कन्वर्ट कीजिए, VEN, इसको भी इवन में कन्वर्ट कीजिए, बाकी चीज वैसे ही वैसे ही रहना। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? पहले ऑड के लिए काम करते हैं, ठीक है, और फिर इवन के लिए करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन f को कॉल करते हैं, दोनों मैप देते हैं, वो कर देगा काम, ऑपरेशन बता देगा। फंक्शन f देते हैं इंट x बराबर f फंक्शन को लिख देते हैं ऑड ऑफ n कॉमा ऑड ऑफ t। ठीक है, और एक इंट काउंट भी देते हैं, काउंट इक्वल टू 0, कितना ऑपरेशन लगेगा वो उसको अपडेट कर देगा इसमें। ठीक है, काउंट में इतना जोड़ देगा, इतना ऑपरेशन इस पर लगा। अब देखिए x बराबर अगर -1 दे रहा है, इसका मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई,
मतलब आप जो है इस ऑड को ऑड टी में नहीं बदल पा रहे, ऑड एन को ऑड टी में। इस केस में तो रिटर्न क्या बोला गया है, बोला गया है arrays are considered to be similar in the minimum number टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट नम्स कैन, अच्छा ऐसा बोल दिया गया कि हमेशा जो है नम्स कन्वर्ट हो सकता है, आपको नम्स को आप ऑलवेज कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि टारगेट में। मान लीजिए आपके पास एक काउंट था, आपने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर हो गया कि कितना ऑपरेशन लगेगा ऑड एन को ऑड टी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसी काउंट में हम जोड़ देते हैं और इसी एफ फंक्शन को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि इवन एन को क्या करो तुम, इवन टी में कन्वर्ट करो, इवन एन को इवन टी में कन्वर्ट करो और जितना ऑपरेशन लगे उतना रिटर्न करो। ये काउंट में जुड़ जाएगा तो हम अंत में क्या करेंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर इस एफ फंक्शन को बिल्ड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, इसको लॉन्ग लॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग मेंशन जा सकता है। तो चलिए लॉन्ग लॉन्ग हमारा फंक्शन एफ रिटर्न करेगा और इसका पहला आर्गुमेंट होगा मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, रेफरेंस बनाते हैं मैप का m1 रखते हैं और फिर रखते हैं मैप ऑफ इंट कॉमा इंट और फिर इसका रेफरेंस बनाते हैं और फिर m2 रखते हैं इसका नाम। अच्छा वी हैव, अब एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, v1 बनाते हैं और फिर बनाते हैं वेक्टर ऑफ इंट v2 बनाते हैं और फिर इस दोनों मैप पर आइटरेट करते हैं फॉर ऑटो आईटी, ऑटो आईटी ऑफ m1 करते हैं और फिर इंट वैल्यू इक्वल टू आईटी डॉट फर्स्ट और फिर इंट फ्रीक्वेंसी बराबर आईटी डॉट सेकेंड। इतना फ्रीक्वेंसी वैल्यू का बचा हुआ है, वैल्यू इतना बार प्रेजेंट है इस m1 में, क्या करें, एक लूप चलाते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन FRE और फिर करते हैं j प्लस प्लस और क्या करते हैं यहाँ पर जस्ट क्या कर देंगे v1 डॉट पुश बैक ओहो हो, यही सेम काम करना है आपको m2 के लिए, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस v, यहाँ पर m1 नहीं, यहाँ पर m2 करिए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वैल्यू इज लेस देन फ्रीक्वेंसी m2 है, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव यहाँ पर v2 होगा खाली। अब देखिए v1 और v2 का साइज पक्का बराबर होगा, नो डाउट वी है, और सॉर्टेड ऑर्डर में दोनों है, तो एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस लीजिए। तो चलिए एक लूप चलिए फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन v1 डॉट साइज और फिर i प्लस प्लस। इतना करने के बाद एक काम कीजिए, एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाइए, इसमें हम ऑपरेशन स्टोर करने वाले हैं, इसका इनिशियलाइज करते हैं 0 से और आंसर प्लस इक्वल टू f1 ll into absolute value of p1 of I minus p2 of I by 2 और इसको कर देते हैं रिटर्न आंसर। चलिए तो ये मिनिमम ऑपरेशन देगा, m1 को m2 में कन्वर्ट करने में कितना लगेगा, काम करना चाहिए सॉल्यूशन को, इट शुड वर्क। इवन कॉमा इवन टी, इवन एन कॉमा इवन टी, ये ऐसा होता है ना, इवन एन कॉमा इवन टी, चार दो ऐसा कैसे हो गया भाई, 8 को आपको सब क्या है, सब इवन है यार, सबका फ्रीक्वेंसी से अलग अलग है, 100 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, दो ऑपरेशन, यार बड़ा चक्कर हो गया, ये तो ऐसे नहीं कर सकते, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ड नहीं है। 6 8 12 2 10 14, 6 8 12 2 10 14, 6 8 12 2 10 14, ठीक है, दो ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन, अभी बोल रहा है कि दो ही ऑपरेशन में, किसी हो जाएगा दो ऑपरेशन में यार,
दो को कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, इसको तो घटा भी तो सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचिए ना, 12 को आपको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? 12 को आप देखिए, 12 से जस्ट क्लोज वाला क्या है, या तो बढ़ा के करना है तो इधर आपको 12 से बड़ा खोजना पड़ेगा। 12 से बड़ा अपर बाउंड खोजिए, अगर घटा के लोअर बाउंड खोजिए, समझ रहे ना? 12 से जस्ट क्लोजेस्ट क्या क्या है? 10 है और 14 है। तो 10 और 14 और 8 से क्लोजेस्ट क्या क्या है? 8 से क्लोजेस्ट एक 10 है और एक 2 है। ये ऐसा हो गया, 6 8 12 हो गया, और 2 10 14 हो गया। सोल्यूशन नहीं काम करेगा। 2 10 14 पर तो हम बात ही नहीं की। अब देखिए ना, 12 के पास चॉइसेस क्या है, 6 के पास चॉइसेस क्या है? 2 में कन्वर्ट हो जाए, हाँ, या 6 के पास चॉइसेस है 10 में कन्वर्ट। 8 के पास क्या चॉइसेस है? 2 में कन्वर्ट हो जाए, या 10 में कन्वर्ट हो जाए, या 14 में कन्वर्ट हो जाए। 14 में कन्वर्ट होगा तो इसको 3 ऑपरेशन लगेगा। अरे यार, अब बोल रहे। अच्छा, एक बार में दो इंडिसेस को पकड़ सकते हैं ना, चूज कर सकते हैं। अरे यार, एक बार में एक ऑपरेशन में दो इंडिसेस। हो, वी कैन पिक इंडिसेस। एक को बढ़ा सकते हैं, एक को घटा सकते हैं, ऐसा है यार। एक बार में दो इंडिसेस चूज करना है, और एक को बढ़ाना है और एक को घटाना है, ऐसा करना है। अब मामला फंस गया, अब सवाल टफ हो गया। एक ऑपरेशन में इस नम्स एरे में से दो एलिमेंट चूज करना है, एक को बढ़ाना है, एक को घटाना। बढ़ाना है, एक को घटाना। 8 12 6 14 10। 8 12 6 2 14 10। 8 12 6 2 14 10। शॉर्ट कर लें, 6 8 12 तो 10 14। दो एलिमेंट को पकड़ के ये काम तो वैसे ही होगा, लेकिन दो ऑपरेशन हो रहा है ना एक बार। एक को बढ़ाना है, एक को घटाना। क्या किया जाए? अच्छा, को बढ़ना है, घटना इसी, बड़ा वाला नहीं घटा है। एक ऑपरेशन में ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 12 हो जाएगा। एक ऑपरेशन में ये नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज बट्टा 2 होगा। कैसे भी आप कीजिए यही सॉल्यूशन रहेगा, इसमें केवल बाई 2 करना है, और इस बात का भी तर्क है, हमेशा बाई 2 करना होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, और इसका तर्क है। तो हमको लग रहा है कि बाई 2 करके हो जाएगा। देख रहे हैं, काम कर रहा है। बाई 2 करके हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और देखिए, काम भी कर गया। बाई 2 करके काम इसलिए हो जाएगा कि एक को बढ़ाना, एक को घटाना कैसे भी कीजिए, अगर ऑलवेज ही कन्वर्टेबल है तो आप इसको दो बार तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, और इसको एक बार घटाना ही पड़ेगा। इसका भी यहाँ पर एक ऑपरेशन तो हम कौन ठीक किए, यहाँ पर भी दो ऑपरेशन कौन ठीक किया, यहाँ पर भी एक ऑपरेशन कौन ठीक है, तो ये 4, ये वास्तव में 4 ऑपरेशन नहीं है, 4/2 ऑपरेशन है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप, एक्सेप्ट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ टफ, इतना टफ तो था नहीं, हार्ड नहीं था।
चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये ग्राफ का है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। So an undirected graph of n nodes is defined by age list where age list of I is equal to ui vi this I denotes that एक undirected graph है जिसमें n नोड है is defined by age list, वो age list से डिफाइन किया गया है where age list of I is equal to ui vi this I denotes that, इसका मतलब ये है कि एज लिस्ट से आपको एक ग्राफ दिया गया है जो कि एज लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। एज लिस्ट एक वेक्टर है जिसके हर एक इंडिसेस पे एक वेक्टर है, उस वेक्टर में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ui vi dis है। ui vi ये बताता है कि ui से vi के बीच में एक एज है और डिस्टेंस i उसके बीच में दूरी है, ठीक है। सो नोट दैट देयर में बी मल्टीपल एज बिटवीन टू नोड्स। सो आप ऐसा मान लीजिए कि देयर कैन बी मल्टीपल एजेस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में मल्टीपल एज हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, वेटेड ग्राफ है तो एक दो दो नोड के बीच में बहुत सारा रास्ता हो सकता है, अलग अलग रास्ता का अलग अलग वेट है, ऐसा दे रखा है इसमें, ठीक है। यू आर गिवन एन एरे क्वेरीज, आपको एक एरे क्वेरी दिया गया है, क्वेरीज ऑफ j इज इक्वल टू pj qj लिमिट j। योर टास्क इज टू डिटरमाइन फॉर ईच क्वेरी j whether there is a path between pj and qj such that each distance on the path has a distance strictly less than limit j। So where there is a path between pj and qj, pj और qj के बीच में एक पाथ है such that each edge on the path has a distance strictly less than limit j। और ये जो pj से there is a path, आपको बताना है कि pj से qj के बीच में एक पाथ है, ठीक है, और उस पाथ में जो भी एज है ना उस पर रखा हुआ वेट लिमिट j से ज्यादा नहीं है, लिमिट j से ज्यादा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात रहा आपके पास, ये रहा। तो आपको बताना है कि इसके लिए या तो ट्रू बताना है या तो फॉल्स बताना है, ये बात ट्रू है कि नहीं है। मतलब पीजे से क्यूजे के बीच में कोई एक ऐसा रास्ता है तो कोई भी एज का वेट जो है लिमिट जे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सच दैट एज ऑन द पाथ हैज ए डिस्टेंस स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट जे से एकदम स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, यही बात है। ठीक है ठीक है, हाउ कैन वी डू इट, कर सकते हैं, गो फॉर इट। तो बात सिंपल सा है कि हर एक दो आप आप अगर ये चीज प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं कि किसी दो नोड के बीच में बहुत सारा रास्ता हो सकता है, पी आई से लेके पीजे के बीच में, क्यूजे के बीच में, क्यू आई के बीच में बहुत सारा रास्ता हो सकता है। हर एक रास्ता में कुछ मैक्सिमम एज का वेट होगा, कोई एज ऐसा होगा जिसका वेट मैक्सिमम होगा, ठीक है, हर एक रास्ता में ऐसा बहुत सारा रास्ता, हर एक रास्ता का इस मैक्सिमम वेट का वैल्यू कुछ होगा m1 m2, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है ये अगर आप स्टोर्ड करके रखे हुए हैं हर एक पेयर ऑफ नोड्स के लिए, तो आप इस हर एक क्वेरी को आराम से आंसर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमको ये पता लगाना है कि पी ए पी आई से लेकर के, अच्छा एक चीज बताइए, इस ग्राफ में नोड कितना है, 10 की पावर 5 नोड है। हमको क्या करना है कि हमको हर एक पेयर ऑफ नोड के लिए हमको हर एक u, v के लिए क्या पता करना है कि बहुत सारा रास्ता होगा u से v पहुंचने का, देयर कैन बी मेनी पाथ सो दैट यू कैन रीच फ्रॉम u to v, you can travel from u to v and in each path there will be an edge which has a maximum distance है। हर एक पाथ में कोई एक ऐसा एज होगा जिसका मैक्सिमम वेट होगा, तो हर पाथ में उस मैक्सिमम वेट का वैल्यू कुछ होगा, तो उस सारे पाथ में से कोई एक ऐसा पाथ होगा जिसका वेट वो वाला मिनिमम होगा, तो वो मिनिमम वेट हमको निकालना है, ठीक है, हर एक पेयर ऑफ नोड के लिए। इस काम को कैसे किया जा सकता है, ग्राफ है, मल्टीपल एज भी है, ठीक है, और लिमिट जे का वैल्यू 10 की पावर 9 है। और क्वेरी कितना पूछा जा सकता है आपसे, क्वेरी 10 की पावर 5 पूछा जाएगा, हर एक क्वेरी को आप लॉग एन से ज्यादा टाइम में आंसर नहीं करना है, लॉग एन में कर देना है आंसर, लॉग एन में आंसर कर देना है, हर एक क्वेरी को ज्यादा से ज्यादा लॉग एन समय ले सकते हैं आप आंसर करने।
या ऑर्डर ऑफ 1 में कर दीजिए, कंप्यूट करके रखना पड़ेगा। ग्राफ में मल्टीपल एज तो है भाई। क्या सोच सकते हैं हम, कैसे किया जाए इसको? एज कितना हो सकता है इस ग्राफ में? 10 की पावर 5 हो सकता है, नोड भी 10 की पावर 5। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ अपना खुद तरीका का हो सकता है। ग्राफ बहुत सारा वेट है, ऐसा। अच्छा एक चीज बताइए, हम जो है मिनिमम डिस्टेंस वाला एज से चलना चाहते हैं ना, एज हैविंग मिनिमम डिस्टेंस, इसी से चलना चाहते हैं ना। मान लीजिए दो नोड के बीच में अगर एक से ज़्यादा एज है, हम वो वाला एज ही जोड़ेंगे ग्राफ में। इसका एज, इसका वेट मिनिमम होगा, डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो हम तो मल्टीपल एज को हटा देंगे। क्या सा बात है? अब हमारे पास एक ग्राफ होगा जिसमें मल्टीपल एज नहीं होगा, दो नोड के बीच सिंगल एज होगा। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ सवाल, सिंगल एज होगा। अब हमको पता करना है कि इस नोड से बहुत सारा नोड होगा, हर एक नोड के लिए हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम एक काम कर सकते हैं जी, वी कैन डू वन थिंग। अब देखिए मल्टीपल एज को तो हम हटा देंगे, मल्टीपल एज को हम हटा चुके हैं, नो वी हैव हटा चुके हैं मल्टीपल एज को। अब क्या करेंगे ना, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, एमएसटी। सबसे पहले कम वेट वाला एज को निकालते हैं, कम वेट वाला एज को निकालते हैं, और कम वेट वाला एज को निकालते हैं हम, ठीक है, और उसको जोड़ते हैं डीएसयू में। वो दोनों, उसको जोड़ने से क्या होगा ना कि देखिए, हाँ डीएसयू से कर देंगे इस सवाल को। मिनिमम स्पेनिंग ट्री का सवाल है और कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि आप जो है एज को सॉर्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, सॉर्ट कर लिए, पहला एज को पकड़िए, ठीक है। वो दोनों या तो कनेक्टेड हो सकता है या तो कनेक्टेड नहीं होगा। अगर कनेक्टेड है तो, अगर कनेक्टेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कीजिए और जो वेट है इसका, वो वेट जोड़िए और फिर एक सेट रखिए। सेट में रखिए कि, सेट में ये रखिए कि पी आई से पीजे का जो, पी आई से पीजे कनेक्टेड हो गया, ऐसा है कि आपके पास एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा जिसमें पी आई होगा, और एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा जिसमें जे होगा, पी क्यू क्यू आई होगा। अब क्या है ना कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट है जिसमें पी आई है, एक कनेक्टेड कंपोनेंट है जिसमें क्यू क्यू आई है। अब इस दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, इसका वेट डब्ल्यू होगा, क्या वेट कहिए या डिस्टेंस कहिए, डी आई एस टी होगा या डब्ल्यू, मतलब मैं कहता हूँ इसको ऐसे लेते हैं, सिंपल लेते हैं थोड़ा सा। इसका डिस्टेंस मान लीजिए इसे, इसका डी आई है, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए डी आई है, डी आई डिस्टेंस है। अब क्या है ना कि इसमें जितना भी इस कनेक्टेड कंपोनेंट में अभी तक में जो भी नोड है, और इस कनेक्टेड कंपोनेंट में जो भी नोड है, तो पेयर ऑफ नोड कह सकते हैं आप, इसको पेयर ऑफ नोड कह सकते हैं। इस कनेक्टेड कंपोनेंट में जो भी नोड है, इसको सेट S1 कहिए, इसको सेट S2 कहिए। S1 सेट का जितना नोड है, S1 से S2 का जो मैक्सिमम, इसका जो आंसर होगा, S1 सेट का कोई भी एलिमेंट होगा और S2 सेट का कोई भी एलिमेंट होगा इस ग्राफ में, ग्राफ में S1 सेट का कोई भी एलिमेंट हो और S2 सेट का कोई भी एलिमेंट हो, ग्राफ उसके बीच का जो सर मान लीजिए आपको एक क्वेरी में दिया गया है कि यू आई कॉमा वी आई के बीच का बताओ और लिमिट आई है, तो ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये बात कैसे पता कर सकते हैं? आप देखिए कि यू आई इस सेट में होगा,
और वी आई इस सेट में होगा, ठीक है। यू आई और वी आई अभी तक कनेक्टेड नहीं है, अभी कनेक्ट हुआ है। जब कनेक्ट हुआ है उस समय वेट कितना है, डी आई है। अगर ये लिमिट आई से छोटा है तब तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ऐसे करके बहुत सारा यू आई वी आई हो सकता है इसमें ना, पेयर ऑफ यू आई वी आई। दिक्कत ये है कि हम तो एमएसटी जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन उससे आंसर कैसे जनरेट करते जाएंगे, और हम पूरे एन स्क्वायर के लिए ये काम कर नहीं सकते स्टोर करके, क्योंकि 10⁵ है तो स्टोर करेंगे 10⁻10 हो जाएगा। दिक्कत है, क्या कर सकते हैं हम इसको, किस तरीका से इसको अपडेट करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समस्या है। एमएसटी तो ठीक है, लगेगा एमएसटी का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से इस क्वेरी को आंसर करना, कैसे आंसर करें, क्वेरी को आंसर कैसे करें। क्वेरी को आंसर ऐसे कर सकते हैं यार, कुछ नहीं था अपने पास, यू आई वी आई को जोड़े। अब यू आई वी आई सबसे मिनिमम वेट वाला है। एक काम और करते हैं यार, डू वन मोर थिंग, काम और करते हैं। ये जो दिया गया है ना आपको क्वेरी, क्वेरी को भी सॉर्ट कर लीजिए, क्वेरी को भी सॉर्ट कर लीजिए और उसका हैश स्टोर करके रख लीजिए। क्वेरी क्वेरी किस इंडेक्स का था, ठीक है, ये स्टोर करके रख लीजिए। क्वेरी को भी सॉर्ट कर लीजिए लिमिट आई के आधार पे, लिमिट आई कॉमा यू आई कॉमा वी आई, सॉर्ट कर लीजिए क्वेरी को, ठीक है। अब क्या है ना, एमएसटी को भी सॉर्ट कर लीजिए, एज को भी सॉर्ट कर लीजिए, क्वेरी को भी सॉर्ट कर लीजिए, तो दोनों चीज हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में, दोनों चीज सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है। मान लीजिए यू आई वी आई अभी तक कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर जो हम अभी जिस एज को निकाले हैं उसका वेट डी आई है, जो कि बराबर है डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट जे, ठीक है। और यू आई वी आई का अभी तक पेरेंट सेम नहीं है, यू आई वी आई अभी तक पेरेंट सेम नहीं है, यू आई वी आई का अभी तक पेरेंट सेम नहीं है भाई। और जो हम एज जोड़े हैं ना उसका वेट डी आई जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट जे, इसका मतलब इसका जरूर आंसर फॉल्स होगा। आप सोचिए, आप पहला वेट जोड़िएगा डी आई, पहला आपके पास एज मिला, आप इसको जोड़े डीएसयू में, ठीक है। अब आप जो है ना इस पर आइट्रेट करते गए, तब तक आइट्रेट करते गए जब तक कि लिमिट आए लेस देन आपको डी आई मिले, जब तक आपको लिमिट आए लेस देन डी आई मिला तब तक आप इस पर आइट्रेट करते गए, ठीक है, आइट्रेट करते गए और चेक करते गए इस दोनों का पेरेंट सेम है क्या। अगर सेम है तो यस, इसका ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। मतलब सोच रहे हैं ना कि अभी तक डी आई वेट तक का ही एज हम जोड़े हैं, और ये दोनों एज जुड़ चुका है, और इसका लिमिट जो है डी आई, ये लिमिट बड़ा है डी आई से, तो सीधा सा बात है कि इस दोनों के लिए आंसर क्या होगा, इस क्वेरी क्या ट्रू होगा भाई। ये दोनों कनेक्टेड, इस दोनों को आप जा सकते हैं एक दूसरे से, यू आई से वी आई जा सकते हैं, जिसमें कोई भी एज ऐसा नहीं होगा जिसका वेट लिमिट से ज्यादा होगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन आपको फिर क्वेरी को जो आंसर करना है इसी ऑर्डर में आंसर करना है, तो शॉर्ट कर लीजिएगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप ये भी स्टोर कर लीजिए कि किस इंडेक्स पे था, स्टोर दोस थिंग्स, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें लिमिट आई होगा, यू आई होगा, वी आई होगा, और एक आई एन डी इंडेक्स होगा, और उसको सॉर्ट कर लेंगे, और एमएसटी को वैसे का वैसे ही सॉर्ट कर लेंगे इस एज को। चलिए कुछ नहीं करते हैं, डू वन थिंग, सॉर्ट, सॉर्ट एज लिस्ट, EDGE, कैपिटल LIST, डॉट बिगिन कॉमा एज लिस्ट डॉट इन, ठीक है। और एक कंपैरेटर डाल देते हैं,
कंपैरेटर फंक्शन। अब क्वेरीज के लिए जो है एक बनाते हैं हम, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन क्वेरीज डॉट साइज और फिर i प्लस प्लस, ऐसा कर देते हैं। अब एक मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट क्वेरी 1, ये मैंने बना लिया। अब क्या करते हैं ना, हम इस क्वेरी 1 में पुश बैक करते हैं वेक्टर। वो वेक्टर क्या होगा जानते हैं? क्वेरीज ऑफ आई क्या है? क्वेरीज ऑफ आई में क्या दिया गया है बताइए? 3 लेंथ का 3 एलिमेंट होगा क्वेरीज ऑफ आई में, पी जे से क्यू जे लिमिट जे। पहले तो लिमिट जे डालना है हमको, तो क्वेरीज ऑफ है ना, आई ऑफ, ठीक है। उसके बाद हमको डालना है यू आई वी आई, क्वेरीज ऑफ आई 0, क्वेरीज ऑफ आई 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और एक चीज और अपने को आई भी स्टोर करते हैं, ये किस इंडेक्स पे रखा हुआ है। अब इतना करने के बाद इसको सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट क्वेरी 1 डॉट बिगिन क्वेरी 1 डॉट इंट, क्वेरी 1 डॉट इंट। अच्छा, कंपैरेटर फंक्शन बना लेते हैं, यू आई वी आई, और उसके बाद डिस्टेंस आई दिया है, तो डिस्टेंस आई के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं। स्टैटिक बुल कंपैरेटर, और पहला एलिमेंट क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट एंड ए, वेक्टर ऑफ इंट एंड बी, और रिटर्न a of 2 is less than b of 2। ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा। अब हमको DSQ लगाना है इस पे, इस एज पे, इसी ऑर्डर में। अच्छा, लगाना है, कोई बात नहीं। चलिए एक व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल 1, इनफाइनाइट लूप लगाते हैं। अच्छा, अभी आप क्या एज पे हैं? 0th एज पे हैं आप, एक भी एज नहीं जुड़े हैं। चलिए इस ith एज को निकालिए, अभी ith एज पे आप हैं इस लूप में। तो देखिए, इफ ith एज पे आप हैं, ith एज पे आप, ith एज पे, ith एज का यू भी डब्ल्यू होगा, यही होगा ना, वो होगा एज लिस्ट में पड़ा हुआ। करते हैं, निकालते हैं, इंट यू इक्वल टू एज लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, एज लिस्ट ऑफ आई 1, और फिर डी क्या होगा, एज लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू से भी की तरफ एक रास्ता है, यू से भी पर जाने का रास्ता है, उसका वेट डी है, ये पता चल गया आपको। अब क्या करते हैं, इसका भी वेट इस डी के बराबर है, तब तक अपन चलाते हैं। एक लूप लिखते हैं, व्हाइल आई इज लेस देन जी एज लिस्ट डॉट साइज, कंडीशन 1, ठीक है।
और एक काम और करते हैं, आई प्लस प्लस तो हम कर भी करेंगे, और फिर एक बार और इस चीज को करते हैं, इसको इंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, डालते हैं कंट्रोल। इस आई चीज यू आई और वी आई के बीच में, ठीक है। अब क्या करें बताइए, डू नथिंग बट डू वन थिंग। अब अपने को एक चीज करना है, सिंपल सा चीज, इसको डीएसयू में ज्वाइन करवा दीजिए, इस यू से भी के बीच में डीएसयू लगा के जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, जोड़ दिए। इस काम को करने के बाद ये पूरा काम जब हो जाएगा, अब अपने पास जे होगा, इंट जे, किस इंडेक्स तक आप कवर कर चुके हैं क्वेरी के, ठीक है। while j is less than f, और यहाँ पे एक और केस लगाइए, एंड एज लिस्ट, ई टी एल आई एस टी, एज लिस्ट ऑफ आई टू बराबर बराबर, while j is less than queries dot size, ठीक है, एंड query वन ऑफ j जीरो, जेथ क्वेरी पे है, उसके जीरो के इंडेक्स पे ही रखा हुआ है आपका, क्या कहते हैं, लिखा है इज ग्रेटर देन, क्या चीज, डी। तब तक इस काम को करना है, जे प्लस प्लस तो करना ही अंत में। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू भी आई एन डी, अपने पास तीन चीज है, यू भी आई एन डी, यू क्या होगा, क्वेरी वन ऑफ जे एंड वन, इसी तरह से भी क्या होगा, क्वेरी वन ऑफ जे वन, ठीक है। यू भी हो गया, और एक चीज और क्या होगा बताइए, किस इंडेक्स पे है, आईएनडी पे है, तो आईएनडी क्या होगा, क्वेरी वन आई टू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं अपने। अब क्या है ना, इफ फाइंड, मान लीजिए एक पेरेंट फंक्शन है जो कि फाइंड पेरेंट कर देता है, फाइंड पेरेंट ऑफ यू इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ भी, पेरेंट ऑफ भी, इस दोनों का पेरेंट सेम है, यानी कि ये दोनों कनेक्टेड है, और जिस एज से कनेक्टेड है उसका वेट जो है लिमिट आई से कम भी है, तो क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। मान लीजिए आपके पास एक आंसर है, आंसर के आईएनडी पे क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए नीचे वाले केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर के आईएनडी पे ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये अपना रहा पूरा काम झाम। अब से बताइए, अब देखिए, अरे यार, ठीक है, वन करते हैं, जीरो करते हैं, क्या है ना, यहाँ पर एक केस लगेगा, इफ आई बराबर बराबर एज लिस्ट डॉट साइज,
तो भी ब्रेक ब्रेक कर जाइए, या इफ जे बराबर query डॉट साइज तो भी ब्रेक कर जाइए। और यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंटेंसर बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंटेंसर का साइज रखते हैं query डॉट साइज, और इसके हर एक इंडेक्स में -1 रख देते हैं। अब बनाते हैं वेक्टर ऑफ इंटेंसर 1, वेक्टर ऑफ वूल वूल 1 का भी रखते हैं डॉट साइज, ठीक है। करते हैं for int I equal to 0 I list in sir dot size, फिर करते हैं I प्लस प्लस, और क्या करेंगे सर, ये if sir of I is equal to माइनस, इसका मतलब वहां पर कभी जा ही नहीं पाए, आंसर तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आंसर 1 of I is equal to आंसर ऑफ I, ये करने के बाद रिटर्न 1, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव डन विद द थिंग्स। बात रहा अपना क्या कि बात यही है कि अपने को DSU लिखना है, ज्वाइन और फाइंड फंक्शन लिखना है। बना देते हैं वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट, हम क्या करते हैं पेरेंट डॉट रिसाइज, पेरेंट डॉट साइज, इसका साइज कितना होगा पेरेंट का बताइए, n होगा भाई, नंबर ऑफ नोड n है, n कॉमा for int I equal to 0 I less than I plus plus and parent of I is going to be I। ये assume क्या किया, हर एक नोड को अपना खुद का पेरेंट बना दिए, तो अभी कनेक्टेड कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये हम पेरेंट एरे को इनिशियलाइज कर दिए। अब अपने पास एक है void join फंक्शन u कॉमा कॉमा u से v को जोड़ो भाई, int PRU पेरेंट ऑफ u इक्वल टू कुछ नहीं, फाइंड पेरेंट फंक्शन को कॉल कीजिए और उसको u दे दीजिए। द सिमिलर मैनर पेरेंट ऑफ v इज नथिंग बट फाइंड पेरेंट ऑफ, अच्छा पेरेंट ऑफ कार, जोड़ दिए दोनों को। अब फाइंड पेरेंट फंक्शन कॉल करते हैं, int find parent int u, if parent of u equal to u, then u is going to be the parent of u, else case int v equal to find parent of v u, रिटर्न करना है, रिटर्न पेरेंट ऑफ u इक्वल टू, हो गया अपना पेरेंट फंक्शन, सब तो हो गया, अच्छा से तो लिख दिया, रन कराते हैं, अगर नहीं हो मिट हो जाएगा, there will be will get submitted, otherwise there can be issue, we are missing a semicolon here, let's put a semicolon here, let's run again, so let's run again. Okay, what it is telling, use of undeclared identifier answer, how you can get it is identifier,
बात हो गया? How it can be possible? Third identifier and nice. लगा ना काम. Now it is going to work. False दे दिया जी. हो सकता है. गलत दे दिया आंसर. ये 1 2 होगा ना. ये होगा ना यार. आई किसी जे 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 वन ऑफ जे. क्या दिक्कत हो गया? करंट इनिशियलाइज किए हैं यहाँ पे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलिए यहाँ पर पेरेंट इनिशियलाइज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पेरेंट है कहाँ पे है? यहाँ बनाया हुआ एंटर ऑफ पेरेंट. यहाँ पे लिखे अब यू बराबर बराबर यू. नहीं तो पेरेंट और यू बराबर पेरेंट करनी है. पी आर यू पेरेंट ऑफ यू बराबर पेरेंट ऑफ यू में से किसी को पेरेंट बना. ये इनिशियलाइज हो गया. सॉर्ट हो गया. सॉर्ट कर दिए. क्वेरी वन बनाए. क्वेरी वन डॉट पुश आई टू आई आई वन आई. हाँ डी बराबर एज लिस्ट ऑफ आई टू. while I is less than age list dot size and age list of I2 बराबर बराबर डी. नहीं यहाँ पर जे series dot size of j 0 greater than d.
2 3 ठीक है। सही लिखे हैं, 1 मिनट। ये सॉर्ट करने तक तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हम ये कर गए हैं कि आप सोचिए आपके पास जो है क्वेरी सॉर्टेड ऑर्डर में है वेट के आधार पर, तो आप ith क्वेरी को पकड़िए, अगला क्वेरी का जो है वेट ज़्यादा है, लिमिट ज़्यादा है। अब क्या कीजिए, इस लिमिट से जितना कम है एज का वेट सबको आप डीएसयू में जोड़ दीजिए, तो फिर देखिए ये अगर कनेक्टेड है ठीक है, कोई बात ही नहीं है। ऐसे अपने को चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन हटाते हैं इसको, क्वेरी 1 पे आइटरेट करेंगे, क्वेरी 1 पर आप यहाँ से आइटरेट करेंगे, 4 int I equal to 0, I less than query 1 dot size और फिर I प्लस प्लस, आप इंटू वैल निकालेंगे, वैल बराबर, अब अभी वेट क्या है, query 1 of I 0, ये है डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस से जितना भी कम, जितना इसके छोटा वाला जितना भी एज है सबको जोड़ दीजिए डीएसयू में। चलिए एक व्हाइल लूप लगाइए, व्हाइल में है एज लिस्ट में हमारा रखा हुआ है, व्हाइल एज लिस्ट, एज लिस्ट ऑफ जे लेस देन वैल, वैल से जब तक छोटा मिल रहा है डीएसयू में जोड़ते जाइए। क्या करना है अपने को, और एक के साथ एंड जे इज लेस देन एज लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। क्या करिए, ये यू भी कैसे निकलेगा, बराबर एज लिस्ट ऑफ आई 0 और इंटू थ्री बराबर एज लिस्ट ऑफ आई 1, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये हम नो प्रॉब्लम टिल नाउ। क्या कर सकते हैं, देखिए फाइन करिए इसको, फाइन करिए u कॉमा v, फाइन करिए और j प्लस प्लस, ओके ठीक है जी। अब क्या है ना, अब देखिए ये जो आपके पास u भी है ओरिजिनल में, इंटू क्या है क्वेरी 1 ऑफ आई ऑफ 1, और v क्या है क्वेरी 1 ऑफ आई ऑफ 2, u भी आपका आ गया। और एक चीज क्या आएगा आपके पास बताइए, u भी और डिस्टेंस नहीं, इसका इंडेक्स क्या है, IND है, इस इंडेक्स पर का ये क्वेरी है, IND इंडेक्स पर का, और वो कहाँ पे रखा हुआ है, क्वेरी 1 ऑफ I 3 0 1 2 3, हाँ ठीक है। अब चेक करेंगे, इफ फाइंड पेरेंट ऑफ u इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ v, इसका मतलब सीधा सा बात है, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ये दोनों कनेक्टेड है और जो भी एज इसमें जुड़ा हुआ है कनेक्ट करने वाला वो लिमिट इसके लिमिट से छोटा ही है। तो इस केस में तो आंसर ऑफ IND को आप कर दीजिएगा 1, इसमें कर दीजिएगा आंसर ऑफ IND को कर दीजिएगा आप जी, कोई दिक्कत नहीं, और हमारा ये काम चलते रहेगा इस तरीका, दिस वे द वर्क विल गो ऑन। और जानते हैं जहाँ जहाँ पर इसमें -1 होगा इसका मतलब उस सब जगह पे आप कभी गए ही नहीं, तो उस सब एज पर जो है आपको अपडेट करने का पर गए हैं यार, सब पर गए, एक केस आना
this is going not going to come. That's it. We have ना करने के बाद है हमारा जो है आंसर वन जो है स्टोर कर लेगा चीज को बनाने लिए। फाइंड पेरेंट ऑफ का लिख दिया, यू होगा, ही होगा ब्रैकेट में, ठीक है। नाउ इट विल वर्क। जे होगा ना यहाँ पे लेक्चर देखिए ये काम कर रहा है, सारा टेस्ट कराते हैं। हाँ तब तो नहीं था ओवरफ्लो। is list per side. काम कर रहा है, वर्किंग नाउ। वटेवर एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है देखें। So it got accepted. So we have solved the question properly and it solution we have solved is very good. काम कर गया है, सॉल्यूशन ठीक है। तो अपन जो है अब एक सवाल जो हमने डीपी का चुना था उस पर काम करेंगे, ठीक। We will work on this question. डीपी वाले सवाल को देखते हैं, डीपी वाले सवाल को देखते हैं हमारे। तो सवाल ये है कि काउंट ऑल पॉसिबल रूट्स। तो you are given an array of distinct positive integer location where location है। You are also given integer start finish presenting the देखिए है क्या है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको एक एरे दिया गया है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर का। लोकेशन आई रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सिटी आई। लोकेशन आई रिप्रेजेंट करता है कि ith सिटी का पोजीशन क्या है। यू आर आल्सो गिवन इंटीजर स्टार्ट फिनिश एंड फ्यूल। यू हैव आल्सो गिवन three integer start finish and fuel representing the starting city, ending city and the initial amount of fuel you have respectively. So basically you have given an array of distinct positive integer location. Location I represent the position of city I. So ith city, position of ith city is kept in the array location, which is location of I represents that the position of ith city. You are also given an integer start, finish and three integer. You have additionally given three integer start, finish and fuel. So a start integer represents the starting city from where you are starting your journey, and finish city represents the city at which you are finishing your journey, and fuel represents that the amount of fuel you have till now. So at each step, if you are at a city I, you can pick any city j such that j is not equal to I and 0 and move to city j. Moving from city I to city j reduces the amount of fuel you have by location of I minus location. So basically you are at city I, so you can go to any other city in the location from 0 to location dot length. You can move to any city, but if you move to a city from city I to city j, then the amount of fuel get reduced is nothing but location of I minus location of j, absolute value of location of I minus location of j. So that is the amount of fuel
going to decrease by. Now the next thing is, please notice that mod x, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. So notice that fuel cannot, आपको बताया गया है कि स्टार्ट सिटी से आपको शुरू करना है जर्नी, फिनिश सिटी पे जाना है, और स्टार्टिंग में जो आपको फ्यूल है वो फ्यूल दिया गया है कि इंटीजर इतना फ्यूल है आपके पास. किसी आई सिटी से आप जो है किसी जे सिटी पे जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपको फ्यूल जितना लगेगा वो होगा लोकेशन ऑफ आई माइनस लोकेशन ऑफ जे. अब बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स, ठीक है इतना समझ में आता है. नोटिस दैट फ्यूल कैनॉट बिकम नेगेटिव एट एनी पॉइंट इन टाइम. अब देखिए जर्नी में चलते चलते अगर आपका फ्यूल का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो मतलब जर्नी खत्म है आपका. यू आर अलाउड टू विजिट एनी सिटी मोर देन वंस. आपको ऐसा अलाउ किया गया है कि एक सिटी को आप एक से ज़्यादा बार विजिट कर सकते हैं. नो डाउट यू कैन विजिट मोर देन वंस एनी सिटी, और फिनिश कर सकते हैं अपनी जर्नी को. रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश सच दैट आंसर मे बी टू लार्ज. आपको सारा पाथ का काउंट बताना है. बहुत सारा पाथ होगा स्टार्ट से फिनिश पहुंचने का. फ्यूल जो आपके पास दिया हुआ है उतना फ्यूल को यूज करके, तो आपको सारे पाथ का काउंट बताना है और ऑब्वियसली उसको मॉडुलो करके बताना है. अच्छा देखिए लोकेशन जो है ना 100 तक ही है, सही बात है. अच्छा फ्यूल का वैल्यू 200 ही है, कोई दिक्कत नहीं है. हम क्या कर सकते हैं जानते हैं आप? फिर तो बात वही हो गया ना कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव. आपको फ्यूल है आपके पास स्टार्ट है, आपके पास फिनिश है. ठीक है, स्टार्ट से शुरू की जर्नी, आपके पास कुछ फ्यूल है, यहाँ से आप बहुत सारा जगह जा सकते हैं, 100 जगह जा सकते हैं. जो भी नोड है हर नोड पे जा सकते हैं. हर एक नोड पे गए और यहाँ पर फ्यूल घट के कुछ और हो जाएगा. मान लीजिए x1 f1 x2 f2 x3, ठीक है. फिर यहाँ से y1 f1 y2 f2 और y3 f3 सो ऑन. आप सोचिए फ्यूल तो आपको भर नहीं सकता, फ्यूल का वैल्यू 200 दिया गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ सिटी जो है 100 है. सोचिए 100 सिटी में बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा फ्यूल लेकर पहुंचने का तरीका है. फ्यूल हमेशा घटेगा ही, नेक्स्ट से नेक्स्ट पे जाएगा, फ्यूल घटेगा, इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज. अच्छा बोल दिया गया कि पोजीशन जो है हमेशा डिफरेंट है, इसलिए फ्यूल अस्थिर भी नहीं रख सकता, घटेगा ही घटेगा यहाँ से यहाँ आने में. किसी भी सिटी आई पे रेट कितना होगा बताइए आप? ये ग्राफ कुछ इस तरह का डायरेक्टेड ग्राफ होगा, तो समझ रहे ना. अगर आप इसको देखें तो कैसा होगा, स्टार्ट कॉमा फ्यूल आपके पास है, यहाँ से कहीं जा सकते हैं. देखिए ये सब स्टेट है जहाँ पर आप गए, ठीक है. मान लीजिए ये स्टेट है एक जो कम फ्यूल वाला है, ठीक है. यहाँ से फिर आप यहाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी यहाँ आ सके और यहाँ से भी यहाँ आ सके. एट लास्ट आपका फ्यूल कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप कहीं जा ही नहीं सकते. ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का है, ठीक है. ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का है. ग्राफ इज लाइक दिस. आप अगर इस पाथ को ग्राफ की तरह देख सकते हैं, आप ग्राफ की तरह देख सकते हैं. और आपको बताना है कि आपको क्या निकालना है बताइए. आपको निकालना है, आपको फिनिश सिटी तक पहुंचना है. फिनिश सिटी पर आप पहुंच सकते हैं 0 फ्यूल के साथ, 1 फ्यूल के साथ, 2 फ्यूल के साथ, एट मैक्स 200 लीटर के साथ. यहाँ पर 0 फ्यूल के साथ कितना तरीका से पहुंच सकते हैं, 1 फ्यूल पर कितना तरीका से पहुंच सकते हैं, 2 फ्यूल पर कितना तरीका से पहुंच सकते हैं, और 200 फ्यूल पर कितना तरीका से पहुंच सकते हैं. सबका जोड़ दीजिए यही आंसर होगा, है ना. तो बात समझ में आता है. ग्राफ इस तरह का है, अपना अपना ग्राफ इसी तरह का है, डायरेक्टेड ग्राफ. तो फिर डीपी लिख सकते हैं ना, डीपी ऐसे लिख सकते हैं. देखिए क्या कर सकते हैं आप, क्यू एक लिए और क्यू में स्टार्ट कॉमा फ्यूल डाल दिए, ठीक है, डाल दिए क्यू में.
क्यू का एक एलिमेंट निकाले, वहां से 100 जगह पे जा सकते हैं, 100 जगह पे गए, ठीक है। यहाँ पर आने का तरीका मान लीजिए एक है, यहाँ से शुरू किए तो एक तरीका है। यहाँ पर आने का तरीका पहले से जितना तरीका हो +1 +1 +1, ठीक है। ऐसे कर करके हम जो है अपने ग्राफ को थोड़ा सा लेके चल सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की तरफ, मतलब बीएफएस की तरफ। इसको आप बीएफएस की तरफ देख सकते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन लाइक बीएफएस। मान लीजिए आप एक क्यू बनाइए, क्यू ऑफ केयर ऑफ कॉमा बनाइए। कहीं पर साइकिल नहीं बनेगा, पता है ना, साइकिल नहीं बन रहा है कहीं पर भी, आप देख लीजिए साइकिल नहीं बन रहा है। इस तरह का ग्राफ होगा अपना। अगर इस ट्रांजिशन को बात करेंगे ना, इस ट्रांजिशन पर अगर इसे चलने का कोशिश करें, चलिए कहीं आपको साइकिल नहीं मिलना है यार, साइकिल नहीं मिलेगा आपको ट्रांजिशन में, कहीं भी साइकिल नहीं मिलेगा। ये साइकिल थोड़ी है यार, ये साइकिल नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द साइकिल। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप आराम से जो है इसको इस तरीके से चला सकते हैं, कहीं साइकिल नहीं है, ये फेस आराम से चला सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यू में पुश कर दीजिए, यहाँ पर क्यू में पुश कर दीजिए, कहिए कि हम जर्नी शुरू कर रहे हैं और हम स्टार्ट नोड से शुरू कर रहे हैं जर्नी, और हमारे पास अभी फ्यूल है FU। नहीं, अब बताइए ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का वैल्यू कितना हो सकता है? वेरी सिंपल, 200 हो सकता है। और नोड का संख्या कितना है? लोकेशन डॉट साइज, सो इंट n इक्वल टू नथिंग बट लोकेशन डॉट साइज, नो प्रॉब्लम ही है, लोकेशन डॉट साइज है और फ्यूल तो फ्यूल ही है। तो एक मैं अगर टेबल बनाऊं, एक मैं टेबल बना लेता हूँ, वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट dp, और इसमें रॉ रखता हूँ n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, और इसमें कॉलम कितना रखूंगा बताइए? कॉलम का संख्या कितना होगा? फ्यूल के बराबर होगा ना, फ्यूल के बराबर होगा, सो FUEL फ्यूल +1 होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग, फ्यूल +1 होगा, नो डाउट भी है। इसको भी n+1 करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इस सब पे अभी हम 0 डाल दे रहे हैं कि 0 तरीका है भाई। लेकिन आप बताइए स्टार्ट नोड पर हमारे पास फ्यूल कितना है? फ्यूल है, तो dp ऑफ, आप सोचिए कि dp ऑफ स्टार्ट नोड पर पहुंचने का कितना तरीका है, और उस समय हमारे पास फ्यूल कितना हो? फ्यूल के बराबर एक तरीका है भाई, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बस इतना dp टेबल भर के अपन इनिशियलाइज करेंगे। देखिए अब लिखते हैं while is not q डॉट empty, क्यों जब तक empty ना हो जाए भाई, इस काम को करना है। एंड auto x equal to nothing but q dot front, no problem we have, so q dot front we have, okay. Next what we can do, dot front we have, next what we can do, start and finish is going to be 0, that's it, okay, 0 indexing है। तो देखिए आप नोड पे, किस नोड पे हैं, किस नोड पे हैं? x डॉट फर्स्ट पे हैं आप, x डॉट फर्स्ट पे हैं, और आपके पास फ्यूल कितना है? x डॉट सेकेंड है, ओके। अब क्या ना, आप इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस लिख सकते हैं। इफ i इज नॉट इक्वल टू, i अगर नोड के बराबर नहीं है, अरे नोड से नोड ही पे जाइएगा क्या? नहीं यार, नोड से कहीं और जाना है। इफ i इज नॉट इक्वल टू नोड, क्या सा बात है, x डॉट सेकेंड डॉट i इज नॉट इक्वल टू नोड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम i पे जाना चाहते हैं और नोड से जाना चाहते हैं। फ्यूल हमारे पास अगर यहाँ पे जाते हैं, फ्यूल कितना हो जाएगा? नहीं होगा, फ्यूल कितना से घटेगा? फ्यूल माइनस इक्वल टू, फ्यूल माइनस कितना से घट के मेरा फ्यूल हो जाएगा बताइए? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लोकेशंस, लोकेशंस ऑफ i, लोकेशंस ऑफ i माइनस लोकेशंस ऑफ नोड। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचिए आप i नोड पर पहुंचे हैं कितना के साथ? फ्यूल 1 के साथ। इफ
फ्यूल 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर फ्यूल 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी तो आप पहुंचे, नहीं तो कहाँ पहुंच पाए। अगर फ्यूल लेस देन 0 हो गया तो मतलब रास्ते में रुक गए ना आप जी। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, डीपी ऑफ आई, आई पे पहुंचे हैं कितना के साथ, फ्यूल 1 के साथ, फ्यूल 1 के साथ, फ्यूल 1 के साथ पहुंचे हैं। और कहाँ से पहुंचे हैं, नोड से पहुंचे हैं। लेकिन जिस नोड से पहुंचे वहां पर फ्यूल कितना था, एफ यू ई एल, एफ यू ई एल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एफ की तरह जा रहे हैं, ठीक है, गुड गुड, ठीक है, दिक्कत नहीं आता। अच्छा, अब आई कॉमा फ्यूल पे तो आ गए, तो क्यू में पुश भी कर दीजिए इसको यार, आई कॉमा एफ यू, काम करते हैं सबको लॉन्ग लॉन्ग बनाते हैं यार। आई कॉमा फ्यूल 1 ना करने के बाद अपना काम हो गया, नहीं करते, एक काम और करते हैं, डीपी ऑफ आई फ्यूल 1 मॉडुलो इक्वल टू एमओडी, और यहाँ पर लिखते हैं हज डिफाइन एमओडी, हज डिफाइन एमओडी, 2 2 4 2 6 2 8 नहीं 7 10 9 और एक काम और करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0 बनाते हैं, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू फ्यूल आई प्लस प्लस, और करते हैं आंसर प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ फिनिश, फिनिश ऑफ फिनिश, और आई, आई फ्यूल के साथ डीपी को कितना तरीका से फिनिश करें, और आंसर मॉडुलो इक्वल टू एमओडी। इतना करने के बाद क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसको काम करना चाहिए सोल्यूशन बराबर लोकेशन, स्टार्ट फिनिश फ्यूल, should work। यहाँ पर भी लोकेशन, we have lot of टू डॉट पॉप नहीं किए भाई, पॉप तो नहीं की, it's giving 5 but it should give 4, why it is giving 5, how many ways, 1 to 3 one ways, 1 to 2 one ways, 1 to 4 आ रहा है, पाँच कैसे आ रहा है यार, 4 क्यों नहीं आ रहा है, why it is not giving me, 5 6 0 4 5 0, हाँ, क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, 1 मिनट आई एम रिजॉल्विंग द इशू।
आफ्टर दैट आई विल रिकॉर्ड। तो इस लॉजिक में जो दिक्कत था वो ये था कि मैं आपको एक बात बता रहा था कि हम जो अभी तक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट कॉमा फ्यूल से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से कुछ नोड पे जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर कुछ जाने का रास्ता है, ऐसे कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे जाने का फिर रास्ता है। मतलब मैं इसको ग्राफ बनाऊँ स्टार्ट कॉमा फ्यूल का, स्टार्ट कॉमा फ्यूल, यहाँ से आप शुरू किए अपने जर्नी को। देखिए कुछ नोड पे आप गए, ठीक है, इस सारे नोड पे गए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक रास्ता ऐसा बना। तो सोचिए आपको नहीं दिख रहा है कि अगर आपको ये पूरा पाथ कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग टाइप में चलना पड़ेगा इस नोड पे से। जब इसका इन डिग्री 0 हो जाएगा तब आप इसको क्यू में डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, ये बात है। तो अब इसमें इन डिग्री तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो क्या करें? काम ये करिए, जैसे कोई नोड कॉमा फ्यूल है, इस नोड पर आने का अभी आप क्यू में आपके पास 4-5 चीज है कि नोड कॉमा फ्यूल, ठीक है, नोड कॉमा फ्यूल 1, नोड कॉमा फ्यूल 1, नोड कॉमा फ्यूल 2। इसका मतलब क्या है कि सोचिए बहुत सारा नोड है आपके पास इस समय क्यू में, और हर एक के पास कुछ फ्यूल का वैल्यू है, कुछ फ्यूल का वैल्यू, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल है। इसमें किसी के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा। आप सोचिए कि अगर आप कोई दूसरा फ्यूल उठाते हैं जो कि मिनिमम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर और किसी रास्ता से पहुंच सकते थे। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या कहता है कि अगर यहाँ पर किसी रास्ता से पहुंच सकते हैं तो पहले वहां से पहुंच जाइए यहाँ पर, फिर यहाँ से चलना शुरू कीजिए। तो आपको जब पता है कि आप जिस नोड को अभी लिए इसमें से, देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास अभी क्यू में है 1,5, एक नोड पर 5 फ्यूल के साथ, 2 नोड पर 3 फ्यूल के साथ, 6 नोड पर 7 फ्यूल के साथ, और 1 नोड पर 2 फ्यूल के साथ। अब इस समय आदमी अगर इस क्यू में से सबसे पहले इसको प्रोसेस करता है 1,5 को, ये तो बेवकूफी है ना, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहता है कि यहाँ से चलना आप तब शुरू कीजिए जब यहाँ पर आने का सारा रास्ता आप कवर कर लीजिए। तो आप सोचिए कि आप जो है, नहीं यहाँ पर मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 5, तो आप सोचिए कि 2 फ्यूल को अगर आप पहले चल रहे हैं तो 1,2 पे आप आ सकते हैं, क्योंकि कुछ नोड ऐसा है जिसके पास फ्यूल ज्यादा है, 2 से ज्यादा है फ्यूल कुछ नोड के पास, तो फ्यूल घट के तो वहां पे आ सकता है ना, 5 घट के 2 पे आ सकता है, 2 घट के फर्दर और छोटा हो जाएगा। तो आप इस 2 को क्यों चल रहे हैं? इस समय जो सबसे बड़ा फ्यूल है उसको चलिए। तो क्यों नहीं, हमको मैक्स हीप यूज करना पड़ेगा वहां पे, समझ रहे हैं ना, मैक्स हीप यूज करना पड़ेगा। और एक बात और हमको करना पड़ेगा, एक नोड को अगर हम 1,5 को चल चुके हैं पहले, हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, फिर से हमको अगर मिलता है 1,5, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्यू में, हमको 2 काम करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा, और सेट में हम स्टोर करेंगे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, यानी कि फ्यूल कॉमा स्टार्ट। जब भी हम क्यू में डाले किसी चीज को, फ्यूल आई कॉमा स्टार्ट को, मतलब अगर हम क्यू में डाल रहे हैं किसी समय पे नोड कॉमा फ्यूल को, तो हम इसको दोबारा नहीं डालेंगे क्यू में, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार जा चुके हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में इस बात का भी ध्यान रखते हैं, एक बार जिस चीज को चले गए, लेकिन यहाँ पर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाला व्यवस्था तो है नहीं, तो हमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा सेट में डाल करके कि हम ऐसा जगह पे जा चुके हैं, क्यू में डाल चुके हैं इसको, हम फिर से इसको प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं। अगर करिएगा तो फिर ज्यादा आ जाएगा ना आंसर, और फिर डीएलई भी देने लगेगा। पहला बात तो मैक्स हीप में आपको डालना पड़ेगा, मैक्स हीप में से सबसे पहले वो चीज निकलना चाहिए जिसके पास फ्यूल ज्यादा है, और फिर दूसरा बात सेट में स्टोर करते जाना पड़ेगा कि जिस चीज को एक बार क्यू में डाल दी दोबारा नहीं डालेंगे। तो बस इतना सा मॉडिफाई किया हूँ तो ये सॉल्यूशन जो है काम कर गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मैक्स हीप बना लिया हूँ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का, ठीक है, आई हैव यूज्ड मैक्स हीप हियर, यू कैन सी। तो मैंने बाकी कोड को वैसे ही रहने दिया है, यहाँ पर केवल मैक्स हीप मैंने बना लिया, देख रहे हैं MXPQQ मैं डिफाइन कर दिया हूँ। अब मैक्स हीप में चीज डाल रहे हैं और मैक्स हीप में से निकाल रहे हैं, और देखिए एक सेट भी बना लिया हूँ मैं, सेट ऑफ फ्यूल 1 कॉमा स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर जब हम क्यू में पुश कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये चीज पहले सेट में है, और सेट में है तो इसका मतलब उस चीज को हम क्यू में डाल चुके हैं तो दोबारा हम नहीं डालना चाहते। वी डोंट वांट टू गो एट दैट नोड फर्दर। हम क्या किए, क्यू में पुश कर दिए इसको, अगर वो नहीं है सेट में, और फिर सेट में इसको पुश कर देंगे, दोबारा नहीं डालेंगे यार।
बाकी चीज वैसा का वैसा, एंड इट विल वर्क। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमको मैक्स हीप क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं ग्राफ की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और ग्राफ की दृष्टिकोण से अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो हमको टॉप शॉट की तरह देखना पड़ेगा, और टॉप शॉट में हम यहाँ पर एन डिग्री कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हमको जो है मैक्स हीप के तरह सोच के हम काम को कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। देख सकते हैं आप ऐसा हो गया। तो वी हैव डन विद द प्रॉब्लम।